Okay, so today we will study about, we will continue our topic related with process. We have completed till now what is process. Okay, give me a moment. Till now, we have completed several topics related to the process, and before that, we have completed others topic related with the process, also, which is CPU scheduling. Okay, we have gone through that in a detailed length. We have completed. We have also solved other question from ISRO, GATE, NET, others, and I have already have uploaded that video in my YouTube channel, and soon I will upload that on the VCS platform also. Okay. So, yeah, talking about the current topic which we have studied in previous session was what is the process, what is the program, what are the difference between both two. It means process versus program. We have finished what are the various kind of states related with the process, states of process. We also finished concept related with PCB, which is known as process control block. Okay, so these are some of the topic which we have completed yesterday related with the process itself. To have a better understanding what is the meaning of process, what is the meaning of program, what is the difference between a process and a program, what are the various states. We have seen the diagrammatic representation of state diagram related to the process. We have studied about there is a new state, and there is a ready state, there is a running state, there was a waiting state, and there was a terminated state. In the CPU scheduling also, I have talked about this state of the process, and we have seen the interrelation between these states also via the help of diagram. So I'm waiting for students to join. It is 8 o'clock and I'm expecting them to join. So we will wait up till 8:05. Okay. One student has came, Ayush Bharti. Okay, very good. Okay, good morning, student. If it is possible, then inform your classmate that class is running. So they will join as soon as possible. Okay, Manisha Kumari is also joined. Very good. So as I informed all of you that I will allow you to join up till 8:10. Okay, up till 8:10, your classmates can join, and our class will start from 8:05. In the meantime,
I will allow all the students who will join, or if those who have joined already, if they will have any kind of question, if you have any kind of question related with all the topic, not only studies topic, all the topic which we have studied till now, you can ask. We have a time up till 8:05. We will discuss all your queries. So if you have any kind of query, then you can respond via the chat box. And if you don't have any kind of query, then you can also tell that I have no. Okay, so up till 8:05, we will take your queries. Okay, Simran Kumaria has also trying to join. I'm admitting her. 3 pool of people have joined. Okay. Smriti, Rupa, Maman, Raj, and Pappu Prasad. Very good. It is nice to see. Again, I want to inform you that if you check the Google Classroom, that today is the last day to submit your lab assignment report. Lab 1 assignment report. Today is the last date. And I have seen yesterday in the night time, Prem Prakash, he has completed his assignment, and in the midnight he has submitted his assignment. Okay. So I think some of you are working very hard uh, and have finished your assignment, and those who have still in the process, I want, as I informed you, that today is the last day to submit your assignment 1 related with lab. And what about assignment related with what I told you about, to solve all the problems related with CPU scheduling, which is asked in GATE examination? Are you doing that? Because I will also announce. Yes, sir. Okay, very good. So I will also announce the last day to submit this assignment. So आप करते रहिए, ऐसा नहीं कि बैठ जाइए. आपको मैंने ये करने के लिए बोल चुका है कि आप गेट का प्रीवियस ईयर में सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको कीजिए. मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लास में करवाए हैं. आई थिंक 2016 तक के 2006 तक के न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं. मतलब 2019 से मैंने स्टार्ट किया था और 2006 तक का न्यूमेरिकल मैंने गेट्स का करवाया है. ठीक है, जो भी सीपीयू शेड्यूलिंग से पूछे गए हैं. So it is 8:05. So till now 13 of you have already joined. Okay. So लग्जरी टाइम 8:05 से लेके 8:10 तक का है. उस बीच में अदर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बट इन द मीन टाइम वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस. ओके, तो ये तो बात रही कि आपको क्या क्या असाइनमेंट करना है. एक बार मैं और याद दिला दूं, गेट का न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आप करते जाइए. बहुत सारे न्यूमेरिकल 2019 से लेके 2006 तक के न्यूमेरिकल आपको गेट के क्लासेस में ही कंप्लीट किए गए हैं. सो आप इसका न्यूमेरिकल बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए. किसी भी समय मैं आपको गेट क्लासरूम में एटलीस्ट मैं 5 डे का दिन तो दूंगा ही. जब भी मैं पोस्ट करूंगा तो उसके बाद नेक्स्ट 5 डे में आपको सबमिट करना है. बट जो नहीं कर रहे होंगे उनके लिए 5 ही दिन होगा. बट जो अभी से कर रहे होंगे, दे हैव फिनिश्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क. ओके,
सो आप लोग ये करते रहिए, दिस विल बी योर असाइनमेंट। मैं कभी भी ये अपलोड कर सकता हूं और पूछ सकता हूं कि आप सबमिट करें। और एक बात और, विच इज दैट कि टुडे इज द लास्ट डे टू सबमिट योर लैब असाइनमेंट। चलिए, तो ये तो इंफॉर्मेशन रहा कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड। और हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, वी हैव सीन सम ऑफ द टॉपिक रिलेटेड विद प्रोसेस। ओके, सो अब आप किसी ने कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं कि आपको कोई क्वेरी है या नहीं, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव नो क्वेरी। वी हैव we just recap में बात करें तो we have studied about the process, we have studied about the program, we have studied about what is the difference between the process and the program, we have studied about the what kind of various kinds of state of the process, like we have studied about the what is new, what is ready, what is running, what is waiting, what is terminated, what is the interrelationship between these states, how a process move from one state to other state. We have also finished that. And after that, we have finished about how the information is stored and where the information is stored in case of all this kind of information, that what is the process name, what is the process ID, what is the program counter value, what is the CPU registers value, uh, what is the process state, what is the scheduling criteria, all this information. Okay, give me a moment. Give me a moment. So we have studied about all these things कि आपका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कहाँ स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन, और पीसीबी, ठीक है, पीसीबी में हम स्टोर करते हैं, बट पीसीबी में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है ये भी हमने क्या है देख चुके हैं इन पीसीबी। ठीक है, तो राइट नाउ, ओके बेटा, right now we have studied this topic, and if you have any kind of query, then again I'm giving you a time of okay, some of the student have trying to join, let them admit. Okay, so so this is the scenario that all these topic which I told you. Did I finish this topic? Did you have a good amount of concept related with this topic, that you are able to solve any kind of question which will be asked from this topic? Kindly respond, students. At least give your response by the chat box. आप ऐसा नहीं कि क्लास ज्वाइन करके सो जाइए। Okay, we got some response by the chat box. Okay, Pappu is telling yes, sir. Okay, so now I will move forward. I will move forward because you have no problem. Only it means पप्पू ही अभी रिस्पॉन्स कर सकता है, बाकी लोग लिंक स्टार्ट करके सो गए हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए, ओके, ऐश्वर्या गुप्ता, हाउ मेनी ऐश्वर्या गुप्ता इज देयर? Okay, so we have seen Aman Raj has also responded that he has no problem. So chaliye, it is 8:11 now. Total number of students who have joined till now is 18. Okay, so we have did we got some concept? Nikhil Kumar, yes sir. Okay. I don't know what.
Okay, let's start. In this particular scenario, I want to explain you how the CPU switch from one process to another process. Okay, and as I told you in the previous class that kindly study about the interrupt. मैंने ये बोला था कि आज आप काइंडली इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ के आइएगा कि इंटरप्ट किसको कहते हैं. राहुल कुमार सिंह इज ट्राइंग टू ज्वाइन, लिटिल बिट लेट बट चलिए ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है. सो मैंने कहा था कि आप इंटरप्ट को पढ़ के आइएगा थोड़ा. तो हाउ मेनी ऑफ यू केम विथ नॉलेज ऑफ इंटरप्ट कि क्या होता है इंटरप्ट एटलीस्ट. ठीक है, क्या होता है इंटरप्ट, ये कुछ लोग पढ़ के आए हैं क्या. तो जो लोग पढ़ के आए होंगे दे विल बी बेनिफिशियल टू दिस सेशन बिकॉज एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट इंटरप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. इवन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में भी पूछे जाते हैं और ओएस में तो पूछे जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो चलिए कैसे स्विच होता है, और ये जो स्विच होता है इसको क्या टर्म कहा जाता है स्टूडेंट. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज दिस टर्म. चलिए आपके बताने से. Yes, very good. Who have responded? Context switching. It is called as context switching. Okay. तो यहां पे देखिए पहले एक प्रोसेस P0 क्या था, एग्जीक्यूट कर रहा था, इन एग्जीक्यूटिंग स्टेट में था. इट मींस कि उसको क्या होगा, सीपीयू एलोकेट होगा तभी तो वो एग्जीक्यूट कर पाएगा. बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू नो प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड. तो इट मींस दैट P0 वाज रिसाइडिंग इन द सीपीयू. Okay, P0 was residing in the CPU. Now, okay, some of the people are Priyanshu Kumari. She is also late. चलिए, तो P0 क्या हो रहा था, P0 आपका CPU में एग्जीक्यूट कर रहा था. अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट कर रहा था तो क्या हुआ कि एक इंटरप्ट ऑकर हुआ. इंटरप्ट ऑकर हुआ इट मींस क्या हुआ, एक सिस्टम कॉल आया या फिर आपका सिस्टम कॉल आया. इंटरप्ट जो होता है जैसा कि हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके थे, मैंने थोड़ा सा डिटेल किया था इसको कि जब एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आपका आएगा, अराइव करेगा, कहां पे आएगा स्टूडेंट, किस शेड्यूलिंग क्यू में आएगा, ये कौन से शेड्यूलिंग क्यू में आएगा, तो रेडी क्यू में आएगा. अगर रेडी क्यू में कोई एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है जो कि करेंटली रनिंग प्रोसेस से उसकी प्रायोरिटी हायर है, देन क्या होगा कि इट विल कॉजेस द इंटरप्ट. सिस्टम कॉल क्या होता है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ रिक्वायर्ड होता है, कुछ फंक्शन करना होता है, देन इन दैट सिनेरियो क्या होता है, सिस्टम कॉल जनरेट होता है. तो इंटरप्ट कब होता है, सिस्टम कॉल कब होता है, आई गिव यू द इंफॉर्मेशन. तो अब क्या होगा, जैसे कि मैंने बात की थी कि आपका एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया है, आपके करंटली रनिंग प्रोसेस है, तो हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में भी पढ़ा था कि क्या होगा, वी नीड टू रिमूव द currently running process from the CPU and allocate to this. It means the CPU get allocated with a new process which has a higher priority than currently running process. और ये primitive type के scheduling में होगा. इट मीन्स कि जब भी अगर आपका एक इंटरप्ट ऑकर होगा तो इंटरप्ट को तभी हम दे पाएंगे जब आपका सीपीयू का जो शेड्यूलिंग होगा इन प्रिमिटिव इन नेचर होगा. ठीक है. तो चलिए आज के जो भी रियल टाइम सिस्टम होते हैं दैट इज अ प्रिमिटिव इन नेचर. तो अब क्या होगा, मैंने एक बात और कही थी स्टूडेंट कि आपका जो होता है, जो भी प्रोसेस होता है दैट इज नॉट ओनली one thing, it has a several parts. Like we have several instruction I0, I1, I2, I3,
एक विद इन अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस में ही क्या होते हैं, वेरियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप वेरियस लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं ना प्रोग्राम के अंदर में, तो क्या होता है, हर एक जो कोड होता है, जैसे कि आपका इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या है, यहाँ पे कंडीशन भी चल रहा है, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर भी है, यहाँ ऑपरेटर की वैल्यू भी फेच करनी है, ऑपरेटर की वैल्यू कंपेयर भी करनी है, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन आई हैव टू टेक द इंस्ट्रक्शन दैट आपका ये लाइन एग्जीक्यूट होगा या फिर कोई और लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन के अंदर भी वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। आपको कहीं फेच करना है ऑपरेंड्स की वैल्यू को, आपको कहीं कंपेयर करना है, कहीं आपको इफ ब्लॉक चलाना है, कहीं आपको कहां जंप करना है ये बताना है। तो वी हैव सेवरल इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म विद इन अ लाइन इटसेल्फ। तो रिचा कुमारी, शी इज लेट, ओके। सो क्या होता है इस केस में, क्या है इस केस में, आपका जो भी करेंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन होगा वो पहले पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, आपने क्या, एक इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं, आपने क्या COA सब्जेक्ट पढ़ा है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर? पढ़े नहीं है सर, पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, पढ़ रहे हैं अभी, वेरी गुड। चलिए, पढ़ रहे हैं तो वहां पे जब आप, मैं एक चीज बता दूं, उससे रिलेटेड एक, चूंकि कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा नीडेड है, तो मैं, चलिए, आपने मे भी नहीं पढ़ा होगा उसको, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल कर दूं यहाँ पे। तो आप आगे चल के ना आप पढ़ेंगे, आप वेरियस स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वेरियस पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन एग्जीक्यूशन में जाता है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, फेच किया जाता है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहता है। मतलब सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन है क्या, वेदर इट इज अ जंप इंस्ट्रक्शन, whether it is a arithmetic instruction, whether it is a आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को ही इटसेल्फ पहले फेच किया जाता है, और फेच करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, डिकोड, मतलब वो क्या करेगा इंस्ट्रक्शन। अगर जंप है तो जंप, क्या ये जंप करेगा, क्या ये अरिथमेटिक ऑपरेशन A+B करेगा, या A×B करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, क्या करेगा, या कंडीशनल स्टेटमेंट है A इज ग्रेटर देन B करेगा। तो क्या होता है कि डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को, डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट जो होता है फेच, डिकोड, देन आपका क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। जब हमने डिकोड कर लिया कि ये इस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, इट मींस अब हमने अब हमें पता चल गया कि ये एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो अब क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, A+B को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको राइट बैक किया जाता है, उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है। तो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो एक लेंदी कहा जाए तो लेंदी उसकी वर्किंग है ना, यहाँ पे लेंदी एक वर्किंग है जिसमें वेरियस पार्ट्स आते हैं, वेरियस पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अब ये बात है कि जब एक आपका इंटरप्ट ऑकर होता है ना, जब आपका एक इंटरप्ट ऑकर होता है, तो उस केस में अगर कहीं भी इंटरप्ट ऑकर हो गया, अभी जो हमारा करंटली रनिंग प्रोसेस था उसका कोई इंस्ट्रक्शन I45 अगर आपका इन एग्जीक्यूशन था, इट मींस मान लीजिए वो डिकोड ही स्टेट में था, तो जब तक ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा, स्टूडेंट रिमेंबर दिस, जब तक कि ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वर्क अपना कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक हम इवन इंटरप्ट को भी इंटरटेन नहीं करेंगे,
इवन इंटरप्ट को भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द वेरियस stages in a instruction and what we will do if a interrupt will occur in this situation or in between a process is in execution, and in that after completion of the execution of currently running instruction, interrupt will be entertained. Okay, did you got this point? बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्ट, इसीलिए मैं एकदम लेंथ में इसको पढ़ा रहा हूं। इंटरप्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छा जो होता है उसको समझ में नहीं आता है इंटरप्ट होता क्या है, ISR होता क्या है, ठीक है, इंटरप्ट को कैसे इंटरटेन करते हैं। तो चलिए, ये तो बात है इंटरप्ट की। एक कुछ मैं इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं वाया द हेल्प ऑफ सम यूजफुल लिंक। ओके, मैंने लिंक ही हटा दी। ओके, अच्छा, ये गीक्स फॉर गीक्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना स्टूडेंट्स? क्या आप सभी को जानकारी है कि देयर इज अ वेबसाइट नोन एज गीक्स फॉर गीक्स, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, यस, आयुषी भारती, सिमरन कुमार, राहुल, अभिषेक, स्मृति, मतलब चलिए, इट इज वेरी गुड टू नो दैट ऑल ऑफ यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वेबसाइट। इट इज अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट। You can get so many information related with the computer science via the help of this website. Okay, you can do the, आप इसमें इवन कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे इंटरप्ट के बारे में, मैंने कहा कि इंटरप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंड तक में स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इंटरप्ट बेसिकली क्या है, एक सिग्नल एमिटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस और अ इवेंट नीड इमीडिएट अटेंशन। जब इमीडिएट अटेंशन का रिक्वायरमेंट किसी भी प्रोसेस या आपके इवन हार्डवेयर को भी होगा, तब आपका इंटरप्ट ऑकर होगा, ठीक है। इट ऑल्टर्स द प्रोसेसर टू ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, ऑल्टर्स द प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर को ये ऑल्टर करता है, एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एलोकेट करता है, रिक्वायरिंग इंटरप्शन ऑफ करंट वर्किंग प्रोसेस। यही हमने अभी डिटेलिंग में बात की, ठीक है। और इसी में क्या होता है, इन IO डिवाइसेस वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइन जो यूज किया जाता है, जो बस कंट्रोल लाइन होता है, इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस। आप जो करंटली में कोआ पढ़ रहे हैं ना, इस सब्जेक्ट में आपको इवन डिटेल में इंटरप्ट पढ़ाया जाएगा, बट हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो IO जो डिवाइसेस है, एक जो बस कंट्रोलर है, डेडिकेट किया जाता है एक इंटरप्ट के ही वर्क के लिए। एक पूरा का पूरा बस जो होता है वो इसी वर्क के लिए होता है कि आपका इंटरप्ट ऑकर हो रहा है या नहीं हो रहा, और इसी को आपका एक्रोनिम किया गया है ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, सो और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताए भी हैं, ठीक है। तो आप इस लिंक को, मैंने PPT में भी आपका ये लिंक प्रोवाइड किया है, तो इस लिंक पे जाकर के आप इसको काइंडली चेक कीजिएगा। यू विल गेट सो मेनी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस टॉपिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट। Okay, so this is all about the interrupt. Now let's see, जब आपका एक इंटरप्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, अब जो करंटली रनिंग प्रोसेस था वो तो क्या होगा, वो CPU से बाहर जाएगा। तो CPU से बाहर जाने से पहले वो क्या करेगा, जितना इंफॉर्मेशन था, क्योंकि उसने कुछ देर तक CPU में रन किया होगा,
ठीक है, उसकी रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज हुई होगी, उसका प्रोग्राम, इवन प्रोग्राम काउंटर की भी वैल्यू चेंज हुई होगी, क्योंकि वो कुछ देर एग्जीक्यूट किया है तो उसने कुछ पार्ट तो अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूट किया होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैल्यू, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया उसका बहुत सारा, जैसे कि उसका कैलकुलेट हुआ होगा रिस्पॉन्स टाइम, किसी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट हुआ होगा। तो ये सब चीजें, ये इंफॉर्मेशन जो होगा ये आपका सेव किया जाएगा, सेव स्टेट इनटू पीसीबी। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो इंफॉर्मेशन होगा ना वो पीसीबी में क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा। इसी तरह से और भी छोटे छोटे वर्क होंगे। तो इतने देर क्या होगा, आपका प्रोसेस वन जिसने इंटरप्ट किया था ना वो क्या होगा, आइडल स्टेट में रहेगा, आइडल स्टेट में रहेगा। और जैसे ही आपका प्रोसेस जीरो से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो प्रोसेस वन है वो क्या करेगा, अपना पीसीबी को रीलोड करेगा, प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक एसोसिएटेड विथ प्रोसेस वन। तो रीलोड किया जाएगा स्टेट फ्रॉम पीसीबी वन। इतने देर आइडल रहने के बाद जैसे ही इसको रिलोड किया जाएगा तो इट मींस इट विल गेट द सीपीयू, इट विल गेट द सीपीयू। और अब P0 को ये सीपीयू से हटा करके P1 सीपीयू में आ जाएगा। ठीक है, रिलोड किया जाएगा पीसीबी। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां पे इंटरप्ट ऑकर हुआ था उस समय से ये आइडल रहना स्टार्ट कर जाएगा P0। ठीक है, और जैसे ही इसका रिलोड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, P1 एग्जीक्यूटिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिंग स्टेट, अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके बाद फिर से एक इंटरप्ट ऑकर हो गया। ठीक है, इंटरप्ट ऑकर हो गया तो क्या होगा, अब वही काम होगा, फिर से आपका पीसीबी वन में वैल्यू स्टोर किया जाएगा, किससे रिलेटेड, P1 से रिलेटेड। और मान ले जाए ये जो इंटरप्ट था ये किसने ऑकर करवाया था, आपका P0 ने। हो सकता है बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, उसमें एक फैक्टर मैं आपको बता दूं, एजिंग हुआ होगा उसका, उसकी प्रायोरिटी वेट करते करते हाई हो गई होगी, वेट करते करते उसकी प्रायोरिटी हाई हो गई होगी, डायनेमिक प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है इस केस में अब P1 को अपना जो इंफॉर्मेशन था वो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। इवन इन दिस स्टेट ऑल्सो दिस टाइम आपका P0 क्या होगा, स्टिल विल बी इन द वेटिंग स्टेट, इट मींस आइडल रहेगा। जैसे ही पीसीबी वन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपके सेव हो जाएंगे तो यहां से जैसे ही जब ये इंटरप्ट ऑकर हुआ था P1 भी आइडल स्टेट में चला जाएगा। तो ये टाइम आप देख रहे हैं कि ये टाइम जैसे ही ये किया है तो यहां से लेकर के ये दोनों ही आइडल में है। जैसे ही इंटरप्ट ऑकर हुआ है ना, जैसे ही इंटरप्ट किसी ने भी ऑकर किया है तो वो भी आइडल स्टेट में है और दूसरा जो प्रोसेस था वो भी आइडल स्टेट में। ठीक है, तो जैसे ही P1 का काम कंप्लीट हो जाएगा वो सारा इंफॉर्मेशन पीसीबी में अपना स्टोर कर लेगा। तो नेक्स्ट क्या करेगा, पीसीबी 0 का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा और वो P1 को सीपीयू से बाहर निकालेगा और P0 को अब सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आइडिया अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रिलेटेड विद द प्रोसेस। तो यही मैंने बात की थी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में भी टाइम लगता है, ये भी आइडल स्टेट में है, यहां ये भी आइडल स्टेट में है। तो ये क्या है, ये कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना, हो सकता है 1 मिली सेकेंड का ही टाइम ले। ठीक है, तो आप जब सीपीयू में शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं तो जो ये आपका लाइन है दैट इज फॉर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, हो सकता है इट विल हैव अ ग्रेटर वैल्यू आल्सो। सो कभी कभी ये गिवन होता है कि आपके एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में इतना टाइम लग रहा है, तो जितना टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा उतना टाइम ये लगते जाएगा। तो आपको पूछेगा कि कंप्लीशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस क्या है,
कंप्लीशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस क्या है? तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे P1 कंप्लीट हुआ, तो P1 कब कंप्लीट होगा? क्या यहाँ पे कंप्लीट होगा या यहाँ पे कंप्लीट होगा? ओके, 1 में कंप्लीट होगा P1 या 2 पे कंप्लीट होगा P1? कैन एनीवन टेल मी? आप ये डायग्राम अगर ध्यान से देखे होंगे, मैं ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। वी गॉट सम रिस्पॉन्स। पप्पू का कहना है कि 1 में कंप्लीट होगा। नहीं, पप्पू 1 में नहीं कंप्लीट होगा। 1 में फिर क्या होगा ना? ओके, वेरी गुड स्मृति रूपम, 2 में कंप्लीट होगा, क्योंकि P1 का काम तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, वो टर्मिनेट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस Pi है वो क्या कर रहा है? वो अपना रीलोड कर रहा है स्टेट को, उसमें टाइम लग रहा है। P1 यहीं पे कंप्लीट हो गया, 2 पे ही कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम होता है कि व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम। और आपका जैसे ही ये आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जुड़ता जाएगा, तो उसी तरह से आपके गैंट चार्ट में भी हर एक प्रोसेस को ये इफेक्ट करेगा। ओके ओके, पप्पू ऑल्सो गॉट दिस कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और थोड़ा लेंदी था, मैं जानता था, और आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये मैंने आपको इस पीपीटी में आपको ये जो इंटरप्ट से रिलेटेड वेबसाइट है उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? तो यू कैन, जब आपको ये पीपीटी मैं प्रोवाइड करूंगा, आज कल तक में आपको ये पीपीटी मिल जाएगा, क्योंकि कल तक में ये पीपीटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिंक को आप चेक करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द इंटरप्ट। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ as we have seen that what are the various scheduling component, we have seen about this thing, that we have various kinds of queues. We have various kinds of queues for scheduling the process. Okay, we have a ready queue. अब रेडी क्यू में क्या होते हैं, कैसे आपके यहाँ पे देखिए, तो आपका क्या होता है, रेडी क्यू होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो रेडी क्यू में क्या होता है, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है। आपका एक पॉइंटर होता है जो कि आपका हेड को रिप्रेजेंट करता है, और एक पॉइंटर होता है जो कि आपका टेल को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि वी कैन इजिली नो दैट कि आपका रेडी क्यू में प्रोसेस अभी है या नहीं है, ठीक है? अगर आपका हेड का वैल्यू, अगर का हेड का पॉइंटर जब चेक करेंगे और वो आपका नल हो जाएगा, इट मींस दैट वी हैव नो प्रोसेस इन आवर सिस्टम, ठीक है? और वी कैन हैव द टेल इंफॉर्मेशन। तो आप चाहें तो आप इसमें पीछे जो प्रोसेस है, वी कैन नो दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ आवर क्यू। ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल। रेडी क्यू को हम कैसे यूज करते हैं, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, वी हैव सीन द एग्जांपल रिलेटेड to that, how we will use the ready queue for scheduling the process in our system. Okay, how we will use, we have seen round robin हमने देखा था, we have seen the SRTF, we have seen the SJF, priority, non-primitive, primitive, FCFS, we have seen this thing and all have included the ready queue. अब इसके अलावा रेडी क्यू के होने के साथ ही साथ क्या होता है, वेरियस अदर कंपोनेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है? लाइक आपका मैक का रिक्वायरमेंट होता है, टेप ड्राइव का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है? टेप ड्राइव देखे होंगे आप प्रीवियस जमाने में, इसको अगर मेमोरी हायरार्की में भी आप पढ़े होंगे, और नहीं तो अगर पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक टेप नाम का डिवाइस होता था हमारे पास, जिसमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता था। राम कृष्णा,
is now want to admit in the classes. I will not permit him because it is already too late. मैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास नहीं चला रहा हूं. ओके, सो ये आपका क्या है कि टेप का भी यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. जब आप पढ़ेंगे ठीक है, जब आप पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की को, तो मेमोरी हायरार्की में आपको पता चलेगा कि वी हैव अ कंपोनेंट मैग्नेटिक टेप. तो मैग्नेटिक टेप से भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब अभी टेप ड्राइव पे कौन कौन सा हमारा क्या है प्रोसेस बना हुआ है, या प्रोसेस को हमको लाना है सिस्टम में, ठीक है. और फिर क्या होता है डिस्क से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन. अब जो डिस्क होता है, न्यूली जो प्रोसेस न्यू जो होते हैं वो कहाँ क्रिएट होते हैं, वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में रहते हैं. ठीक है, थोड़ा कोआ का मैं टर्म कुछ यूज कर रहा हूं. सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में आपका मैग्नेटिक डिस्क आता है. डिस्क आप देखोगे ना, आपका HDD या SDD, आजकल SDD का जमाना चल रहा है. तो क्या होता है डिस्क का यूज किया जाता है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. तो वहीं पे क्या होता है प्रोग्राम रिसाइड करता है. प्रोग्राम रिसाइड करता है तो उनको क्रिएट करने के लिए क्या उनका इंफॉर्मेशन, अब जो प्रोसेस न्यूली क्रिएट हो रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन क्या होगा डिस्क में स्टोर होगा. ठीक है, डिस्क में स्टोर होगा. या हो सकता है आपका कोई टर्मिनल डिवाइस है, प्रिंटर है, प्रिंटर में भी कुछ प्रोसेसिंग का वर्क चल सकता है. तो होता है ना कि आपने प्रिंट कमांड दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेस ना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेस. प्रिंट होना है तो ये तो ऐसा है नहीं कि जादू का बात है कि बस हमने यहां से दबा दिया और प्रिंट हो गया. वहां भी क्या होता है, वहां भी प्रोसेस चलता है. तो टर्मिनल जो होते हैं उनके पास भी प्रोसेस होते हैं. ठीक है, लेट्स सी रामकृष्ण इज स्टिल देयर टू ज्वाइन द क्लास. आई एम एडमिटिंग हिम. ओके, ही स्विच्ड ऑन. Right now he is not there. Okay, as I informed you student in the previous session also, please आप 8-10 तक ज्वाइन करें क्लास को. अदरवाइज ऐसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं अटेंडेंस के लिए क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं. रामकृष्णा came again, so let's give him a little bit okay. Ramkrishna, you have joined the class. Why you have joined the class so late? आप 8:39 में क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि क्लासेस तो आपकी शेड्यूल है 8 o'clock से. रामकृष्णा, कैन यू टेल मी? सर आज लेट हो गया सर थोड़ा सा. प्लीज आप एटलीस्ट आज लेट हो गया, ठीक है, मैंने फिर भी आपको ज्वाइन कर लिया है, इवन इट इज 8:39. ठीक है, बट काइंडली आप 8:10 या उससे पहले क्लास को ज्वाइन करें. ठीक है, जी सर, अगले क्लास से सर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट, सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन है. प्लीज 8:10 से पहले ज्वाइन कीजिए. ठीक है, 10 मिनट का टाइम ऐसे दे रहे हैं आपको, बहुत है. 8 o'clock तक सब उठ जाते हैं. ठंड का टाइम नहीं, इट इज अ समर टाइम. तो हम क्या होता है कि वी हैव these kind of scheduling component which we have. आपका रेडी क्यू होता है, टेप ड्राइव्स होते हैं, डिस्क होते हैं, टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं. तो इन सभी में प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं प्रोसेस से रिलेटेड, वो क्या होते हैं स्टोर किए जाते हैं. और आप सभी को पता है व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी स्टोर इन पीसीबी. And PCB is abbreviated as process control block. मैं बार बार प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसीलिए बता रहा हूं, क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इसलिए बता रहा हूं, ताकि आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको बता सकें.
एक बात याद रखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको पढ़ाने में 100% दे रहा हूं तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी उस साइड से 100% दें। अगर आपका जब भी वाइवा हो ना इस सब्जेक्ट का, तो आप फुल्ली प्रिपेयर रहें, फुल्ली प्रिपेयर रहें। आपको बेस्ट टू द बेस्ट आना चाहिए, जो भी पढ़ाया गया है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ राजीव कुमार इज ट्राइंग टू ज्वाइन। वाई? क्या अटेंडेंस के लिए क्लास चल रही है क्या सिर्फ? नो, आई विल आस्क राजीव कुमार ऑल्सो। राजीव कुमार, आर यू देयर? Rajiv is joined. Rajiv Kumar, why you joined class so late? सर फीवर था इसलिए। तो इन्फॉर्म एटलीस्ट कीजिए ना, मैंने आपको क्या कहा, आप नहीं इन्फॉर्म कर सकते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि राजीव कुमार रोल नंबर दिस को ये इस काइंड का प्रॉब्लम है ना। प्लीज थोड़ा प्रायर इंफॉर्मेशन दे दीजिए सो दैट आई कैन कंसिडर दैट। ओके सर। और ट्राई कीजिए कि 8-10 या उससे पहले आप क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। मुझे ये ना लगे कि और सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज डोंट। ठीक है सर। चलिए, तो वी हैव सीन दैट व्हाट आर द वेरियस शेड्यूलिंग कंपोनेंट व्हिच वी हैव टू शेड्यूल आवर प्रोसेस। और शेड्यूलिंग क्या होता है, कैसे होता है, वी हैव सीन दैट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने ये इंफॉर्मेशन भी ऐसे दे दिया है। शेड्यूलिंग कंपोनेंट का ही एक पार्ट होता है शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स, वी हैव वेरियस काइंड ऑफ शेड्यूलर। मैंने आपको याद होगा तो पढ़ाया होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। इवन मैंने ये भी बताया था कि इनका नाम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म क्यों है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक वी विल सी अगेन इट दैट वी हैव अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये कंपोनेंट है, अब शेड्यूलर है तो इट विल बी अ कंपोनेंट। अब हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ वर्क करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ पे वर्क करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ पे वर्क करता है। ये चीज हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। किस प्रोसेस से, प्रोसेस का किस स्टेट में को चेंज करने में ये मदद करता है। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है रन सेल्डम, मतलब कि ये बहुत लेटली रन करते हैं, इनफ्रीक्वेंटली रन करते हैं। सेल्डम मीन्स व्हेन जॉब कम्स इनटू मेमोरी, जब भी जॉब होगा वो मेमोरी में आएगा तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विल रन। अब जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, यस स्टूडेंट इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन गेट में भी पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, कंट्रोल्स करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्योंकि रेडी क्यू में कौन प्रोसेस रहेगा, रेडी क्यू में कब आता है प्रोसेस, जब आपका न्यू से प्रोसेस रेडी स्टेट में जाता है तब आपका रेडी क्यू में प्रोसेस आता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क करता है। ये चूज करता है कि जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है इनमें से किस प्रोसेस को हम रेडी क्यू में भेजें। तो रेडी क्यू का, अब जो रेडी क्यू होगा तो इसमें अगर हमारा 5 प्रोसेस है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पे अगर हमारा 10 प्रोसेस है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट हु विल चूज दिस प्रोसेस, द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विल चूज दिस प्रोसेस। तो who will controls the degree of multi-programming? Long term scheduler will controls the degree of multi-programming. Okay, get it? Tries to balance Yes, sir. arrival and depart.
ये क्या करता है, ट्राइज टू बैलेंस अराइवल एंड डिपार्चर रेट थ्रू एन एप्रोप्रिएट जॉब मिक्स। मतलब कि आपने देखा होगा कि आपका जब रनिंग स्टेट से आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेटेड स्टेट में प्रोसेस जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस को सिंपली सिस्टम से बाहर निकाल रहा है कि वो प्रोसेस क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये एडमिट कर रहा है। तो एक को एडमिट कराना है, एक को एग्जिट कराना है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये बैलेंस करता है कि आपका जो रेडी क्यू में है वो प्रोसेस हो हमारे पास कुछ, ठीक है। और ये एप्रोप्रिएट जॉब मिक्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस जो बाहर जा रहे हैं, 10 प्रोसेस का वर्क कंप्लीट हो गया, तो वी नीड मोर प्रोसेस हियर, वी नीड मोर प्रोसेस। तो दिस वर्क इज डन बाय द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। एंड इवन आपका जो आपने पढ़ा होगा ना, एक न्यूमेरिकल हमने किया था, आई थिंक 2006 का न्यूमेरिकल था, मुझे अगर सही से याद है, जहां पे कि हमने पहले देखा था कि सीपीयू बर्स्ट का रिक्वायरमेंट था, फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट का रिक्वायरमेंट था, फिर से सीपीयू बर्स्ट का रिक्वायरमेंट था। तो इस टाइप का हम सिनेरियो देखे थे, याद है आप सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ये भी सेलेक्ट करता है, वो जो सीपीयू आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है, वो ये भी सेलेक्ट करता है कि ये एक सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस है या इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेस है। तो इनका मिक्स ऑफ प्रोसेस हम हमेशा दें, ताकि आपका सीपीयू का भी यूटिलाइजेशन हो और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो, तो आपकी इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम क्या हो, इंक्रीज रहे और थ्रूपुट आपका इंक्रीज रहे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेस, इन दोनों के मिक्स को क्या करता है, एलोकेट करता है इन द रेडी क्यू। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस है तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट क्यू का यूज होगा नहीं। अब अगर सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट क्यू का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो सीपीयू का यूज नहीं होगा। तो वी नीड अ मिक्सचर ऑफ दीज प्रोसेस, ताकि हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सकें। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जिम्मेदार होता है। ओके, होप सभी को समझ में आया होगा। क्या अभी ओके, हु इज दिस, आई गॉट okay. Now student, I am providing a link for today's attendance. Kindly fill it up. Kindly fill it up. I have provided you link for today's attendance. Kindly give your response. Right now 23 students are in the class. अच्छा, आपकी क्लास का कोई रिप्रेजेंटेटिव है क्या? क्लास रिप्रेजेंटेटिव है क्या? कोई है क्लास रिप्रेजेंटेटिव? किसी को बनाया गया है क्या? यस सर। पप्पू इज हु इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव? पप्पू सर। पप्पू सर मैकेनिकल, जो मैकेनिकल के सेकंड? नो सर पप्पू, यस पप्पू से याद है मेरा। अच्छा, पप्पू प्रसाद, ओके ओके। यस सर। बिकॉज कॉलेज में पप्पू सर भी है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया। सॉरी फॉर दैट।
ओके, पप्पू प्रसाद ना. अच्छा पप्पू, you are a class representative and you right now you are in the class. So I want to ask you, आपके क्लास का स्ट्रेंथ क्या है? What is the strength of your total? 71 sir. 71. और मैं कंटिन्यूस ये चीज देखता हूँ कि आपका नहीं करते हैं क्लास को. क्यों सर कोई क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं. क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? क्या मैं खराब पढ़ा रहा हूँ? आप जो अभी यहाँ पे 23 स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएं कि मैं क्या खराब पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर. तो why student are not joined? What is the problem? I want to know that what is the problem? Whether they have internet connection का problem है उनके पास, system का problem है उनके पास, क्या प्रॉब्लम है? पप्पू सर हाँ सर नहीं बताते हैं. responsibility to find the problem in your classmates, that why they are not joining. Okay sir. If you want to have the attendance of your classmate, then I can provide you that you will by the help of that you can get that this much amount of student are joining, but these are not joining. But मैं constantly देख रहा हूँ 30 मैक्सिमम मैं ये मैक्स बात कर रहा हूँ कि 30 लोग ज्वाइन करते हैं. Okay, somebody has responded because they are not interested in joining classes. तो मतलब क्या है? कॉलेज में फिर एडमिशन लेने का मतलब क्या है? They don't join classes of any subject. Very good. Yes sir. Very good. It means that they think that बीटेक जो आपका ये है वो आपको बिना मेहनत किए, बिना क्लासेस किए मिल जाएगा सर्टिफिकेट. तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं, आप अपने क्लासमेट्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा. जिनका 75% अटेंडेंस से लेस होगा ना, मैं ना तो उसको मिड सेम में बैठने दूंगा, मिड सेम में नहीं बैठने दूंगा, मैं डिबार करूंगा. मैं ना तो इनको वाइवा में बैठने दूंगा. मैं जो भी एक्टिविटी होगा, जिनका 75% अटेंडेंस नहीं होगा, आई विल इन्फॉर्म दिस टू द HOD ऑल्सो, टू द प्रिंसिपल ऑल्सो, दैट this much amount of students have less than 75% attendance. I will debar them from the mid-sem. Strictly आप ये अपने क्लासमेट्स को बताइए. Yes, Prem, if they have a problem, then they can tell me ना. What is मैंने सारा आपको चैनल ओपन करके रखा है ना. मैंने आपको व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, वहां पे 72 लोग ज्वाइंट हैं. आपका गूगल क्लासरूम है, आपका यूट्यूब में भी मैं आया हूँ, VCS में भी मैं हूँ. मैं सारे जगह मैं हूँ. आप कहीं से आप मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं. नहीं लगता है कि ग्रुप में बताने, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मेल कीजिए. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी. आपको अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम, घर में नहीं आ रहा है इंटरनेट, मुझे बताइए ना कि नहीं आ रहा है इंटरनेट. मुझे बताइए, किसी भी मीडियम से बताइए कि सर मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूं. मैं खुद बीमार था तो मैं जानता हूं कि प्रॉब्लम क्या होती है. आई नो दिस थिंग्स एंड आई कंसिडर ऑल्सो. बट आप बिना इन्फॉर्म किए चाहेंगे कि मैं इंजॉय करता रहूं और लास्ट में मैं बोलूं कि सर मेरे पास प्रॉब्लम था, तो आई विल नॉट लिसन दैट. Yes, please inform your classmates that please join the classes. और मेरा क्लास इंफॉर्मेटिव होता है. मैं ऐसा नहीं होता हूं कि मैं आपको जो स्लाइड में बस वो पढ़ता चला गया. दूसरे सब्जेक्ट का भी कुछ नीडेड होता है, मैं वो भी आपको बताता हूं.
कहीं लिंक का रिक्वायरमेंट है, मैं हर टाइप से आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं, बट मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप क्लासेस नहीं करें और आप मजे से, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, आप उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकते हैं। जो क्लास नहीं किए, दे आर नॉट इक्विवेलेंट विद दोज हु आर ज्वाइनिंग द क्लासेस on the daily basis, who are completing their all the works, assignment, lab report जो कर रहे हैं, मैं उसको उसके बराबर कभी नहीं कंसीडर करूंगा। मैं यू विल गेट पनिशमेंट। मैं आपको एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको प्रॉब्लम है, मुझे लगेगा जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैं आपको करूंगा, मैं आपको एंटरटेन करूंगा। ओके, शुभम इज टेलिंग मी सर असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 का जो कोडिंग पार्ट है, ओके, एफसीएफएस से रिलेटेड क्या शुभम? एफसीएफएस से रिलेटेड क्या कोडिंग पार्ट? ओके ओके ओके। मैं आपको जितना मैं इवन बोलता हूं ना, आपसे असाइनमेंट जितना बन पाता है ना उतना ही बनाइए, और नीचे नोट्स में लिख दीजिए सर मुझे ये समझने में प्रॉब्लम है, मैं उसको भी कंसिडर करूंगा। अभी जैसे मुझे शुभम ने बताया कि उसको कोडिंग में प्रॉब्लम है, तो आई विल हेल्प हिम, मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देके मैं हेल्प करूंगा, ठीक है? आई एम वेरी लीनियंट अबाउट, आप जिसको पढ़ना है ना मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं 8 बजे उठ के आपका क्लास ले रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं यूट्यूब चैनल लगा के उसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, हाँ? कितने सब्जेक्ट का आपका लैब चल रहा है, मैं आपके लैब्स वर्क करवा रहा हूं। If I am this much dedication, I have given you this much dedication, then I also expect some dedication from your part also. Okay, sorry for being a little bit harsh today, but I will not consider any type of this thing. ठीक है, तो ओके, टाइम हो चुका है लगभग 8:59, और आप सभी ने रिस्पॉन्ड किया है फॉर योर अटेंडेंस। जिनको भी, अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, जिनको भी प्रॉब्लम है, जिस टाइप का भी प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे बताइए, जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड आई विल कंसिडर दैट ऑल्सो। जब आपका अटेंडेंस कैलकुलेशन हो रहा होगा, इफ आई विल हैव द इंफॉर्मेशन, आई विल कंसिडर दैट ऑल्सो। बट आप एंड टाइम में मुझे बताएंगे कि सर मैं बीमार था, मुझे ये हुआ था, मुझे वो हुआ था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम था, आपके फैमिली मेंबर्स में भी प्रॉब्लम है, मुझे बताइए ना, आई विल कंसिडर दैट। ऑब्वियस है कि आपके घर में कोई परेशानी है तो आपको भी परेशानी होगी, तो यू विल नॉट ज्वाइन द क्लासेस, आई विल नो दैट, आई नो दैट। आप असाइनमेंट नहीं कर पाइएगा टाइम पे, आई नो दैट, बट प्लीज इन्फॉर्म मी ना। Okay, so students, now if you have any kind of query related with topics which we have completed till now, you can ask. Otherwise, I will end today's session right here, right now. And Pappu, please find the problem among your classmates, what they have. Okay, we got some. Okay, thank you, student. As Thank you you. have no problem, I am ending today's session right here, right now. Have a nice day.